अस्सलाम वालेकुम। Welcome, Salam. अ, जैसे कि माय नेम इज़ तारिक मुस्तफ़ा, आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ वेटरनरी डॉक्टर अलायंस पाकिस्तान। सो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपनी तारीफ की मोहताज नहीं है। उसका बड़ा नाम है, पेट क्लिनिक्स में देखें या आपका उसका ग्लोबली नाम देखें। तो आज हमारे साथ हैं हमारी होस्ट स्पीकर डॉक्टर हुमेरा अहमद खान, जो एमफिल हैं वेटनरी इंटरनल मेडिसिन में और कल्चरल एम्बेसडर रह चुकी हैं पाकिस्तान की इन यूएसए, और वो ग्लोबल अवार्ड से अल्मना से भी मुंसलिक हैं, और वो सीईओ भी हैं वेट लगारी एनिमल हॉस्पिटल लाहौर की, एक्स मैनेजर जू बेरिया टाउन की भी। तो आगे हम मैम से खुद ही कह रहे हैं कि वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। जी Assalamualaikum मैम। everyone. I hope Assalamualaikum. Thank you Dr. Tariq. थोड़ा सा ग्लिच था, वॉइस ड्रॉप हो रही थी, सो आई थिंक मैं रिपीट कर देती हूँ इफ somebody couldn't listen to what you said. He was just introducing me. Thank you so much आप का और वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन का कि आप लोगों ने मुझे इतना ऑनरेबल समझा और इतनी तारीफ की, ऑल्दो I am a very down to earth person and I don't think I am that capable. बाकी I'm so happy कि आप लोग इतना अच्छा एक आप लोग वेबिनार कर रहे हैं which is very helpful for students because मैं personally I love teachers that are working in the universities and faculties, but I think they are only teaching the coursework and they are only telling you the theory. And yes, there are practical classes, but I personally think that they're not preparing us for the future. I was not prepared for the future. I was not prepared to face the world. मुझे बहुत अच्छी तरह पता था कि ग्रेड्स थे, सब कुछ था, थियरेटिकली आई वाज गुड, बट आई डोंट थिंक कि जब कल मेरे सामने एक लायन रखा गया व्हेन आई वाज इन जू, आई वाज वर्किंग देयर, तो अब मैं उसको अपनी ऐसे तो नहीं सुना सकती थी ना, मैं उसको ये बता सकती थी कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द मोड ऑफ एक्शन एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू. सो आई थिंक आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड. सो यही एक छोटी सी कोशिश है जो वीडीए कर रहा है और मैं करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, दैट लेट्स फेस द वर्ल्ड, लेट्स बी प्रिपेयर्ड. तो इसीलिए आज ये इंट्रोडक्टरी सेशन रखा गया है. वी डोंट हैव अ टॉपिक टुडे. We have just arranged this webinar or this session so that after this session we can take comments from you people on this comment section, and you people can tell me what topics you want me to talk on every Sunday, and the topic that has the most comments on, or the topic that is related to that big area of discussion, we can put that as a main headline of that specific day. So every Sunday at 9 p.m. we will be doing this, inshallah, because everybody is mostly free on Sunday, and it's winter, so I don't think that everybody is going out after 9 p.m. It's very cold outside these days. So it would be good and it would be energetic because Saturday ko aap log so lete hain, Sunday bhi so lete hain subah, and shaam ko I think it would be good if we talk about things. From the coming sessions, we will try to make a link on the Google Meet or Zoom so that हम आपके live comments साथ साथ लेते रहें if there are questions of veterinary students or pet practitioners. So yeah, this is my aim and this is the vision that was given to me by VDA. So thank you so much VDA that you literally made it possible for me to talk from your platform to other vets and the young veterinarians or the pet owners that have the link of this show and that are going to join today, inshallah. So for my introduction, I graduated in 2016 and I got my job right away. That was my first job. I worked there for like a couple of months. I worked as an after sales coordinator in a foreign based non-governmental organization, but I applied in Town Zoo, and by the start of 2017 in the January, I was the employee
in the Bahria Town Zoo, Lahore. I was the manager of the zoo, and I was also the veterinary doctor. So I was working with the horses in the riding club, the dogs of the kennels, and also the animals in the zoo that were engaged there and that needed my love and attention. So this is how my journey began as a person with a lot of responsibilities as a new graduate, and I had to face the world, and I had to take care of the whole zoo, and I was answerable to people. One of the strongest community, or you can say an organization, so I had to be answerable. तो उसके लिए you should be well prepared. Knowledge के हिसाब से you should be well prepared in your practical way, in your way of treating an animal. So I think I was not very well prepared, but experiences helped me, and the people over there that were working already helped me, and my seniors where I did my internship in Lahore Zoo, they kept on helping me even when I got my job. So what do we learn from this thing? We learn that we have to be together to help each other at each stage. If today I am going to offer you an internship, or if today I am going to be sitting here and giving you some time out of my life, so why am I doing it? Because people did it for me. I live on campus, and it's a veterinary university. So whenever students come to my home, I tell them my doors are always open. So I get some messages that, why are you saying this? Aap kyun aisa keh rahi hain? Like, people think that it is something too different. But to be honest, when I was in USA and when I was in Turkey, people were welcoming to me. They opened their doors to me. They made me sit in their home. They made me eat food with them. They literally let me sit on the same table as their children. So for me, it is very important. And they were also veterinarians, most of them my professors and their families. So I think we should keep on continuing this thing, and it is known as empowering the next. This thing is very important. So this is my introduction, and after I was in Bahria Town, I applied for the scholarship, which is Turkish government scholarship, and I went to Turkey. I took the first year as Turkish language, and also the academic Turkish of the health sciences. So basically I can read the literature or articles in Turkish languages of medical sciences, and I wrote my thesis in English but also in Turkish at the same time. So alhamdulillah, I have C2 level of Turkish language. And then I started my MS in internal medicine in the Department of Veterinary Internal Medicines in Erciyes University, Turkey. And in right after like 1 month of going there, I got my first assignment to be the veterinary practitioner in the teaching hospital, the Department of Internal Medicine. And after that, for like the coming 2.5 years, I practiced there. And I did not only learn there or study there, I also worked there every day from 8 a.m. to 6 p.m. and sometimes after that as well, because I really love animals and I wanted to stay there. I fostered a lot of kittens there and puppies who needed my help. And also I helped my professors with their projects, and I took their assignments, and was always welcoming. So I think that if you're respecting your elders and you're welcoming to what they're telling you, you learn, because they started to trust me. I was from another country, I was from another language, another race, another nation, but there was one thing that was common, and I was a veterinary doctor and they were veterinary doctors. So I think we should respect each other. We are a whole big family outside the boundaries, outside the borders, and we should respect each other. So yes, this is my introduction. And yes, sometimes like every semester in Turkey, they were having students from Erasmus Mundus, which is, there is an Erasmus scholarship, but there is another one that is called Erasmus Plus. So students from across Europe, they just go on exchange programs to other European countries. So we were having them, and just because Turkish was the mode of education there, so they were having problems. So me, along with other
postgraduates who knew how to speak English, or their official language or their language they graduated in was English. So we were teaching them, we were training them clinically in the Department of Internal Medicine. So I've had a very good experience there, and I worked there practically. And many of you people already know, but in 2018 we started Vet Lagari, me and Dr. Imran. So I am officially the CEO of Vet Lagari Animal Hospital, and we have other veterinarians working there. We have veterinary assistants, we have interns coming and going. Dr. Tarek is one of them, and we really love him. He worked with us. So I was not practically here at that time. I was in Turkey. I recently came back when my daughter was born. But I wish I was there and we could work together. So this is my introduction, and currently I'm working in Vet Lagari Animal Hospital. I started last week as a proper full-time veterinary doctor over there. Previously, I was dealing my clients online. So this is my introduction, and if you have any questions related to my introduction, please you can ask me, and you can always follow me on my you can say Instagram and Facebook. And if you people are introducing yourselves to me in a proper way, I will reply to you guys, because a lot of people ask me, ma'am aap reply nahi karti, and then they tell me their name, and when I come back home, I go and I open the message requests and there is like hi. So how will I reply to a hi? Like this is not how you should reply. I am welcoming, I will guide you guys, I will help you guys, but I really need somebody to at least inform me who they are, what are they going to talk about, and how can I help them. So yes, this is it. And if you guys have any questions, do let me know. We arranged this session today for discussion, like introductory session. So, and today was the World Cup final. I don't know what was the final results of the World Cup, because I just came here in the drawing room when I prepared for the session. So now I can see the comments as well. VDA, thank you to VDA for making it visible to me. I can see the comments. So if anybody wants to talk about something, or they want me to talk about something, please comment. What topic do you want to discuss? I will make it a little bit मतलब आप लोगों के लिए easy बना देती हूँ. Pet practices, scholarships, what else? Like whatever, but like anything that is related to client dealing. So please do the comment, and I will start talking about that topic. Meanwhile, Dr. Tarek, if you want to introduce yourself, please go on, because you missed that. जी मैम, मेरा तो था कि आप अभी हमें बताएं कि आप जब फील्ड में अपना काम स्टार्ट किया था, तो आपको कोई मुश्किलात वगैरह पेश आई होंगी ज़रूर। तो आपको किसी ने ये नहीं कहा था कि आप लड़की हैं या आप वुमेन है, कि आप इस फील्ड में कैसे आ गए, इस पे ये तो फील्ड आपका नहीं था? ऐसे कोई क्वेश्चन हुए थे आपसे? Actually, let's start from 2011 October, जब मेरी फर्स्ट क्लास थी ऑन 14th October 2011, और हम लोग गए तो हमारी फर्स्ट क्लास थी एनाटॉमी की. आई वाज एडमिट इन द फर्स्ट सेमेस्टर. So I matlab practically there are some very well known veterinary doctors in Pakistan who are known because of they are co-founders and founders of Pakistani Veterinary Medicine Council, PVMC. So they are my family members, and for me veterinary profession was very respectful. Yes, I also did apply for medicines, I did apply for other fields, but in the end when I chose veterinary medicine, it was not like कि वहाँ नहीं हुआ तो मैंने choose किया. Yes, obviously everybody has dreams, but that first day I went to my class, and I'm always honest. The first thing that happened was that I was from an institute where we used to speak in English. My FSC and my schooling was from such institute. So when I went there and I was talking in English, because our official language of studying is English. Yes. So the first thing my professor on the very first day on 14th October 2011 said was, आपने मेडिसिन में क्यों नहीं अप्लाई किया, आप डीवीएम क्यों करने आ गई हैं? मतलब आप
माशाल्लाह यू आर अ डॉक्टर, यू आर अर्निंग, यू आर इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आप वहां पे हमें तालीम देंगे और आप खुद ही अपने प्रोफेशन को डाउन कर रहे हैं। तो एक बार तो मैं भी सोच में पड़ गई थी कि मैंने क्या गलत कर दिया, चलो सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन ले लेते हैं मेडिसिन में। अगर इतना ही बुरा किया है मैंने, इतना ही गलत किया कि एक टीचर जो है वो मुझे ऐसे कह रहे हैं। उसके बाद उसी ही दिन जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका एफएससी का क्या स्कोर है, आपके एंट्री टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, तो जो पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया, ये एक और टीचर है सेम ही डे पे, कि आपने जो लाहौर में और फैसलाबाद में यहाँ पे क्यों नहीं एडमिशन लिया, पेशावर में क्यों नहीं एडमिशन लिया। तो सेकंड जो मुझे एक शॉक मिला, या मैं कह सकती हूँ कि कैरियर काउंसलिंग पे मेरे इफेक्ट हुआ, वो ये था कि मैंने चॉइस भी गलत किया। फिर एक तो मैंने प्रोफेशन गलत चूज किया, उसके बाद मैंने चॉइस भी गलत की। और मजे की बात ये कि आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि आप इंस्टीट्यूशन को पढ़ा रहे हैं और आप लोगों ने ही हमें बनाना है कल को आपके रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए शॉक था लाइफ का। फिर शुरू से पर्सनालिटी डिफरेंट थी, आई यूज्ड टू लाइक डूइंग डिबेट्स, और मैं थोड़ा सा यू कैन से स्टार्ट में आई एक्सेप्ट दिस थिंग नाउ दैट आई वाज ऑलवेज रिबेलियस, मतलब रिबेलियन वाज देयर, क्योंकि जब मुझे लगता था कि वो काम नहीं हो रहा जो मैं करना चाहती हूँ, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और लोग नहीं चाहते कि मैं वो करूं, या लेग पुलिंग हो रही है, तो मैं ज्यादा करती थी वो काम। So that was natural, और thanks to my father who was always there, thanks to my mother who was always there, तो ये है कि वो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट था। तो मैं अपने वो फर्स्ट 4 years कह सकते हैं या 3 years कह लेते हैं, वो मेरे लिए ट्रॉमेटिक गुजरे काफी। एजुकेशन वाज ओके, बट देर वॉज नो क्या कह सकते हैं, एक कैरियर काउंसलिंग नहीं थी, मुझे खुद विजन नहीं नजर आता था कि कल को मैंने क्या करना है जाके आगे। मेरा विजन कब खुला, जब मैंने यूग्रेड के लिए अप्लाई किया। यूएसए की एक स्कॉलरशिप है, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन फॉर पाकिस्तान ऑफर करता है उस स्कॉलरशिप को। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है, इट्स अ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो उसमें ये है कि जब मैं वहां पे गई यूएसए, तो वहां पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि मैं जिस क्लास में बैठी हूँ, या जिस ऑडिटोरियम टाइप के वहां क्लासरूम्स होते हैं, वहां पे मैं बैठी हूँ, 55-60 स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर से 90% फीमेल है, और उस 90% से भी 90% में भी 10 to 20% यूएस आर्मी के यूनिफॉर्म पहने हुए फीमेल हैं। तो वहां से मुझे पता चला कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। और शायद क्योंकि मैं एक ऐसे रीजन से बिलोंग करती थी, ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी कि जहां पे मुझसे इसलिए भी काउंटर क्वेश्चन किए जा रहे थे क्योंकि वो लोग खुद ही खुश नहीं थे, वो सब कुछ बन के भी खुश नहीं थे। तो फिर मुझे पता चला कि वो उनकी मिस्टेक नहीं है, इट्स ऑलवेज हेयर, ये यहाँ पे है सब कुछ, ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, मेरा तुमने खुद करना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना। तो फिर यूग्रेड से जब मैं वापस आई, तो वो एक स्कॉलरशिप ही ऐसी थी कि उसके बाद काफी सारे रास्ते खुलते गए, things started to happen, people started to contact me। और सबसे बड़ी आई थिंक अच्छी एक जो आई थिंक एक अच्छी चॉइस थी जो मेरे फादर ने मेरे लिए की, कि हमें जब इंटर्नशिप्स के लिए भेजा जा रहा था फाइनल ईयर में, तो उन्होंने जो हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे मेरी इंटर्नशिप के लिए किया था। कोई बफलो फार्म में था, आई रियली रिस्पेक्ट दैट, बहुत अच्छी बात है। आई लव बफलोज, पर्सनली बफलोज आर माय फेवरेट एनिमल, आई डोंट इवन लाइक काउज, आई लव बफलोज। सो बफलोज का एक फार्म था, एक आई थिंक कोई वेटनरीज का, आई थिंक कोई हॉस्पिटल था, और एक और था, लाइक इट वाज इन द रीजन, और रोटेशंस थी वहां पे। यस, एक था डेयरी फार्म टाइप ऑफ समथिंग जहां पे कंप्लीट प्रोसेसिंग प्लांट था। तो व्हेन आई केम होम विद दैट नोटिस, तो मेरे फादर ने कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रैक्टिकल है काफी, और जिस रीजन में ये है वो आपकी वाली बात है कि ये तो गांव में है मोस्ट ऑफ ये जो जगह हैं काफी। तो यहाँ पे एक तो फर्स्ट के ट्रांसपोर्ट का इश्यू आपको होगा, दूसरा आपको एक ये भी प्रॉब्लम होगा कि आपने कल को क्या इसी फील्ड में रहना है, आप सोचो इस बात को एक दफा। तो व्हेन आई थॉट अबाउट इट, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है। मीनवाइल मेरे एक दो यूग्रेड पे ही जाने की वजह से मुझे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, डॉक्टर नबील रिफा से पढ़े हैं, हम दोनों यूग्रेड पे इकट्ठे उसी साल गए थे। ही टोल्ड मी अबाउट हिज वर्क कि वो इंटर्नशिप कर रहे हैं अपने जू में, लाहौर में एक सफारी जू है वहां पे।
तो उस वक्त वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैंने अप्लाई किया, वीआरआई जो है गवर्नमेंट के थ्रू, सेक्रेटरी साहब से मेरे इंस्टीट्यूट ने बात की, बिकॉज आई प्रेस्ड देम, आई वांट टू गो समवेयर एल्स, तो मुझे वीआरआई भेजा गया लाहौर में. I was the only, I think, from my region because I'm from KPK and that was in Lahore. VRI में 1 महीना करने के बाद मैंने लाहौर जू में अप्लाई किया एंड थैंक गॉड, अल्लाह खुश रखे उन लोगों को, दे एक्सेप्टेड मी. वहां से आई केम टू नो कि जू में क्या होता है, और वेटनरी फीमेल डॉक्टर्स जो हैं, युवास हो गया, यूएएफ हो गया, इस टाइप के इदारे हो गए, यहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत सारी फीमेल वेटनरी डॉक्टर्स हैं और वो सब कर रहे हैं कुछ लाइफ में. और वीआरआई में भी जब मैं थी तो वहां पे माशाल्लाह हर डिपार्टमेंट में देयर वाज अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ फीमेल वेटनरी डॉक्टर्स प्रैक्टिकली वर्किंग एंड सपोर्टिंग देयर फैमिलीज एंड विनिंग ब्रेड एंड बटर फॉर देयर फैमिलीज. सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेरे लिए था कि मैं जब लाहौर आई तो मेरा विजन ओपन हुआ. शायद मेरे रीजन में कभी ना हो पाता, क्योंकि मैं जब फाइनल ईयर में थी तब मेरे इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट फीमेल टीचर को एम्प्लॉय किया था, तो उससे पहले कोई मेरा विजन था ही नहीं इस बारे में. एनीवेज, दिस इज व्हाट हैपेंड. और पढ़ाई लिखाई अपनी तरफ होती है, करियर काउंसलिंग, विजनरी होना वो अपनी तरफ होता है. तो आई थिंक के विजन मुझे यहाँ से मिला. मेरी इंटर्नशिप पे आई स्टार्टेड लविंग जू एनिमल्स, और यही हुआ कि जब मैं वापस गई और मैं एक जॉब कर रही थी एंड आई हैड टू लीव दैट फॉर सम रीजंस इन लाइक, और नेक्स्ट ही मंथ मुझे वही सेम डॉक्टर नबील से मैसेज आ गया कि लाहौर बहरिया टाउन इज एम्प्लॉइंग वेटनरी डॉक्टर्स, और उन्होंने ऑलरेडी मेरी सीवी उनको सेंड कर दी है और उनकी तरफ से मुझे कॉल आई है. सो I went there, I took the interview में 40 candidates थे, and I was the only one from KPK, I was the only one from my university that was applying, and alhamdulillah I was selected. और उस वक्त लगता था कि वो जो प्री इंटर्नशिप में जो हमने चीजें सीखी हैं वैसा ही सब कुछ होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि उस वक्त मैं 3 वेटनरी डॉक्टर्स के अंडर काम करती हूँ लाहौर जू में, और जब मेरे ऊपर सब कुछ आ जाएगा कि मैं अकेली वहां पे वेटनरी डॉक्टर होंगे, मैंने इतना कुछ देखना होगा, अब पता लगेगा कि सिर्फ वेटनरी डॉक्टर होना, एक ट्रीटमेंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है वहां पे, क्योंकि क्लाइंट तो है नहीं जू में आपके पास एक चीज है, उसको आपने एनगेज किया हुआ है, उसकी आपने मैनेजमेंट करनी है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, डिवॉर्मिंग करनी है, वैक्सीनेशंस करनी है, माइक्रोचिपिंग्स करनी है. जो हॉर्सेस थे उनको हमने डर्बीज पे भेजना है, उनको कॉम्पिटिशंस पे भेजना है, फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी थी वहां पे. सो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी, बट अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट माई करियर मैंने अपने आप को भी डाउन नहीं होने दिया. और थैंक्स टू अ लॉट ऑफ गुड प्रोफेसर्स फ्रॉम गोमल यूनिवर्सिटी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस चीज में भी, कि अगर मैं आगे आना चाह रही हूँ तो उन्होंने मुझे आगे आने दिया. उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मेरा तुम फीमेल हो तो तुमने नहीं आना. जो नहीं आ रही थी वो उनको भी नहीं कहते थे कि आओ, बट अगर मैं आ रही थी आगे तो उन्होंने मुझे आने दिया. दे गेव मी अ स्पेस. अगर मोस्ट ऑफ द वेटरिनरी डॉक्टर्स आर हियर, अगर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करनी है काओ में और बाकी सब नहीं कर रही फीमेल, तो मैंने करना है, तो उन्होंने कहा यस यू कैन डू इट, और कोई नहीं हंसेगा, कोई बात नहीं करेगा. तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज भी कि अल्लाह पाक उन सबको, आई थिंक आई विल ऑलवेज प्रे फॉर देम wherever they are today. Most of them are retired, most of them are mashallah working there. So I think that was a start. तो एक तरफ से अगर एक हमें डाउन कर रहे थे कुछ प्रोफेशनल्स, तो एक तरफ से कुछ उठा भी रहे थे. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैलेंस होना आपकी लाइफ में. और सबसे ज्यादा जो हर्डल्स कह सकते हैं कि जू में मुझे आई थी वो ये था कि स्टार्ट में मुझे वही बात है जिससे मैंने स्टार्ट लिया कि आपने मोड ऑफ एक्शन तो नहीं एनिमल को समझाना, आपने उसको ये तो नहीं बताना कि मैंने आपको फ्लेजिल दिया तो इसके ये इफेक्ट्स होंगे. आपने करके दिखाना है, आपको रिजल्ट चाहिए. और जो आगे बस 50-60 लाख का शेयर होता है ना, तो लग पता जाता है अगर उसके साथ कुछ हो जाए खराब, तो ऑब्वियसली वो किसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो एनिमल है, आई लव देम, बट द ओनर लव्स हिज मनी. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने वहां पे सीखी. और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी फ्रॉम बहरिया टाउन. स्ट्रगल्स की, बट मैं रात को 3 बजे भी मुझे कॉल आई है ना कि डॉक्टर हुमैरा डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर हुमैरा जाके केज में बैठ जाती थी. सो आई थिंक कि वो मेरी ड्यूटी टाइमिंग्स नहीं भी थे, तो वो एक कंसिस्टेंसी, लव फॉर एनिमल्स, तो अल्लाह पाक ने मुझे, मतलब माय लॉर्ड गेव मी रिजल्ट्स और ही गेव मी माय फ्रूट. So be consistent with your profession. कोई आपको कुछ नहीं देगा. Always remember that your Lord, whoever you believe in, will give you what you want. So this is what happened, and my employers were very happy from me.
and they always supported me. Even I got married when I was there, and when I left them I was not very happy. लेकिन जाहिर सी बात है, to develop myself in life मुझे obviously करना था कि मैं आगे जाऊं, एमफिल करूं, क्योंकि आपको पता है कि स्पेशलाइजेशन के बगैर तो एक एमबीबीएस डॉक्टर और बीडीएस डॉक्टर्स भी आजकल तरक्की नहीं कर सकते, इन सिंपल वर्ड्स. तो यस, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक आई आंसर्ड, एंड यस आई हैड प्रॉब्लम्स, and I can share on in each Sundays lessons or webinar that we will have कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, वो साथ साथ बंदा फिर बताता जाता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई, ये उसका आंसर था. So generally this is the thing, and if you have any more questions, Dr. Tariq, you can ask me, and I think in comments there are a lot of questions. If you want to read from there, you can also I think talk about those questions. If you want to take those questions, please. If you want me, I can also read the answer. जी Okay, मैम, so आप Mr. स्टार्ट Ali करें कमेंट से. yes. Okay, Mr. Tariq, I can also see comments. So if you say, I can also read them and I can answer. So I think we should start that now. यस मैम, So the आप first रीड one करें. is, okay. Thank you so much, Dr. Tariq. Okay. So Ali Haider said कि उर्दू बोले मैम. Ali Haider, yes, I am trying कि मैं bilingual रहूं, but there are some students from Sri Lanka and Nepal who are studying in UVAS right now. वो भी आज इस सेशन में हैं, तो और वो होंगे, तो I think that it is, and there are some students from Sudan as well जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ सेशन. So I think मुझे bilingual रहना चाहिए as much as possible, because it's practical degree and it's practical. यहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगी I will talk in Urdu as well. So Assalamu alaikum ma'am, hope you will be fine. Yes. So मेरे ख्याल में एक प्रोफेशन में जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि आपको बॉयज की तरह काम करना है और गर्ल्स को चाहिए. आई एम आंसरिंग टू एहसानुल्लाह राइट नाउ कि गर्ल्स को चाहिए कि बॉयज की तरह काम करो, बॉयज को चाहिए गर्ल्स की तरह काम करें. नहीं, जरूरी नहीं है. गर्ल्स गर्ल्स की तरह काम कर सकती हैं और बॉयज जो है वो बॉयज की तरह काम कर सकते हैं. आपको ये समझना चाहिए कि आपको मैं चलिए आपको इसकी मिसाल इस तरह देती हूँ कि लास्ट ईयर, यस 2022 समर्स की बात है. I got a question. मैं वहां पे एक लाइव सेशन में थी पाकिस्तान जब मैं आई थी. आई वाज ऑन माय हॉलीडेज. तो मेरा एक सेशन करवाया गया था यहाँ पे यूनिवर्सिटी में. तो मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैं फार्म पे जाना चाहती हूँ, मैं डेयरी एनिमल्स में काम करना चाहती हूँ, बट मुझे यूनिवर्सिटी जो है वो आउटरीच प्रोग्राम्स में नहीं भेजती बिकॉज फार्मर्स जो हैं कोई मुझे नहीं भेजा जाता, बॉयज को प्रेफर किया जाता. ये क्वेश्चन था. तो मेरा फर्स्ट आंसर उसको ये था कि बेटा देखो, your personal security, your personal dignity and honor is more important than earning some money. अगर आपने प्रोफेशनली डेयरी में काम करना भी है तो जरूरी नहीं है कि आप डोर टू डोर फार्मर्स के घरों में जाएं और आउटरीच प्रोग्राम्स करें. आप जिस तरह फॉर एग्जांपल नेस्ले है, उनके भी डेयरी फार्म्स हैं अपने, और इस टाइप के आई डोंट नो ऑलपर्स का मैन्युफैक्चरर कौन है, हलीब है. इवन ये हम जब युवास के अरावी कैंपस से लाहौर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में हलीब आता है, उनके भी डेयरी फार्म्स हैं. तो अगर आपको शौक है कि आप डेयरी एनिमल्स के साथ काम करें, गो गेट अ गुड जॉब, अप्लाई फॉर दैट, वर्क हार्ड फॉर दैट. यूनिवर्सिटीज के अपने डेयरी फार्म्स होते हैं, वहां पे प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह अपने आप को प्रिपेयर करें, इंटरव्यूज में जाएं, क्वेश्चंस में बैठें और अपने आप को मनवाएं कि यस यू कैन डू दैट. तो वहां पे कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो प्रोफेशनली इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीजें सोशली इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीजें रिलीजियसली इंपॉर्टेंट होती हैं, और हर जगह पे आप हर चीज को साथ लेकर नहीं चल सकते. अब मैं जब जू में काम करती थी, आई यूज्ड टू कवर माई सेल्फ, तो आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. एक बार एक चिंपैंजी टुक अवे माई स्कार्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. आई फेल्ट बैड, और अल्लाह पाक ने मुझे बचाया था बिकॉज वो मेरे गले में फंस गया था मेरा स्कार्फ. वो चिंपैंजी के साथ काम कर रही थी, तो सडनली ही जस्ट केम आउट ऑफ नोवेयर, उसने केज से हाथ निकाला एंड ही डिड इट. थोड़ा सा गैप था. सो उससे मैंने क्या लर्न किया कि या तो मैं उसमें काम ना करूं, या फिर मैं ऐसी ड्रेसिंग करूं, या इस तरीके से अपने आप को, अगर मैंने रैप भी करना है, कि मैं रैप करूं कि मैं यहाँ काम कर सकूं.
ताकि मुझे जो उस वक्त एक फील हुई है एम्बैरेसमेंट कि आई हैव नो कवरिंग ऑन मी नाउ, वो मुझे ना फील हो। तो आप लोग मैनेज करना सीखें। अब वो जमाना चला गया, लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कों को ये करना चाहिए, अब वो चीजें नहीं है। अब तो लोग भी समझ रहे हैं इस चीजों को, माशाल्लाह गर्ल्स और मैं कहती हूँ फादर्स, आजकल जो माशाल्लाह फादर्स हैं दे आर मच स्ट्रॉन्गर। वो पिछली जनरेशन के फादर से ज्यादा माशाल्लाह इस वक्त के फादर जितने भी हैं, बच्चियों के फादर जितने भी हैं, गर्ल्स के फादर जितने भी हैं, काफी विजन उनका ओपन है। आप माशाल्लाह देखें, काफी लोग बैठे हैं, गांव में भी बैठे हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं इस वक्त। तो वो वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये अब क्वेश्चंस आई थिंक करने ही नहीं चाहिए आप लोगों को। हर किसी को मैनेज करना आना चाहिए। और फील्ड जो है, फील्ड इज गुड, एवरी फील्ड इज इंपॉर्टेंट। और आप अगर देखें तो इस वक्त हमारी नीड है एग्रीकल्चर में हमारी नीड है वेटनरी डॉक्टर्स की। क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री इस वक्त इकोनॉमी के साथ फाइट कर रही है, इन्फ्लेशन है, हमारा अपना इतनी मिल्क प्रोडक्शन है, लेकिन हम बिकॉज हम लोग ऑनेस्ट नहीं है, हम लोग उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हमारी पोल्ट्री प्रोडक्शन इतनी है कि हम ऑनेस्ट होते हैं तो हम लोग इससे इतना अर्न कर लेते कि शायद हमारे जो लोन्स हैं वो उतर जाते। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे भी ध्यान दें। जिस तरह अब एक वेट लगा रही है एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज प्राइवेट बिजनेस। स्टार्ट में हमें भी इश्यूज आई हैं, हमें स्टार्ट में इन्वेस्ट करना पड़े, हर महीने इन्वेस्ट करना पड़े, फिर प्रॉफिट आना शुरू हुए। और आप ट्रस्ट करें, अभी तक उस प्रॉफिट से हम शायद 20% लेते होंगे, वापस 80% इन्वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज अभी नीड है उसको डेवलप करने की। तो अब ये क्वेश्चंस जो है कि लड़कियां कर सकती हैं या लड़के कर सकते हैं और क्या है क्या नहीं है, आई थिंक ये यूजलेस क्वेश्चंस हैं। अब तो बच्चियां माशाल्लाह गर्ल्स आर वेरी वर्किंग वेरी मच, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गई है डीवीएम में, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और गर्ल्स आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो आप अपना देखिए कि आप लोग को चूज जो आप फील्ड कर रहे हैं उसमें आप कहाँ पे अपने आप को मनवा सकते हैं। जू की फील्ड में, एक्सोटिक्स में आई वर्क, नाउ मैं पेट में वर्क कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने टर्की में वर्क किया तो आई लर्न के पेट्स के क्लाइंटेज कितनी है और कितना अच्छा यहाँ पे फीलिंग आती है जब किसी का पेट ठीक होता है और वो कितनी अच्छी आपको रिस्पॉन्स देते हैं। तो मेरा विजन चेंज हुआ और मैंने आके वापस अपने ही क्लिनिक पे तवज्जो देनी शुरू कर दी। तो यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। और कोई भी डिग्री यूजलेस नहीं है, आई एम सॉरी, ये एक थॉट प्रोसेस है। और जो कोई चीज देखता है कि वो यूजलेस है, पहले तो उसको ये सोचना चाहिए कि क्या उसकी थॉट्स पॉजिटिव है, क्या उसकी थॉट्स इतनी ओपन है कि वो उस चीज को समझ सक रहा है या नहीं समझ सक रहा है, या वो जो बात करे क्या उसको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, क्वेश्चंस लेते हैं अब। क्वेश्चंस ओके। स्कॉलरशिप्स के लिए आपको पहले चाहिए कि आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाएं, इतने ग्रेड्स लें कि जब आप अप्लाई करें किसी स्कॉलरशिप में तो आप एटलीस्ट कंपटीशन में तो हो, रिजेक्शन का भी मजा आए आपको उस वक्त। स्कॉलरशिप्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे साफ साफ लिखा हुआ होता है कि जो क्लिनिकल मेडिसिन की डिग्री है, चाहे वो ह्यूमन साइड पे है, एनिमल साइड पे है, वट एवर, 3.5 प्लस सीजीपीए हो। पाकिस्तानी क्या करते हैं, 2 सीजीपीए वाले भी अप्लाई कर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या बनता है, इतना ज्यादा अटैक हो जाता है स्कॉलरशिप के पोर्टल पे कि अक्सर तो बच्चे अप्लाई नहीं कर पा रहे होते, इतना लोड होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना शुरू कर दें अभी से स्कॉलरशिप्स के लिए। गाइडेंस आपको मिल जाती है, बड़े फेसबुक के पेजेस हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं जो गाइड करते हैं, सब कुछ है। एलिजिबिलिटी पे तवज्जो दें। और अगर आपको लगता है कि आप उस एलिजिबिलिटी पे पूरा नहीं उतर पा रहे, तो आप उस एलिजिबिलिटी को अभी से बनाना शुरू करें अपने लिए। सीजीपीएस, आपके कुछ स्कॉलरशिप है जो सीजीपीएस पे नहीं इतनी तवज्जो देते, वो कहते हैं आप हमारा टेस्ट पास करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीआरई, आपने आइल्स देना हर हाल में, उसके बाद आपकी सीजीपीए को मींस कंसिडर किया जाएगा। आप आइल्स की तैयारी करें, आप जीआरई की तैयारी करें। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं डॉक्टर इमरान से भी हमेशा यही कहती हूँ और मैं आपको भी यही कहूंगी, एक काम पे तवज्जो दें, मल्टीपल वर्किंग मत करें। मल्टीपल वर्किंग से क्या होता है कि आप लोग जो हैं कहीं के भी नहीं रहते। कुछ अल्लाह पाक की तरफ से होता है या व्हाट कैन वी से कि वो फॉर्चुनेट होते हैं जो कर जाते हैं मल्टीपल टास्किंग। लेकिन बेस्ट ये है कि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ें और अच्छी तरह पढ़ें, और अभी मत सोचें कि मेरा कल को क्या होगा। जो कर रहे हैं ना उसको पूरा करें, अच्छी सीजीपीए लें, अच्छे प्रैक्टिशनर बने, अच्छे ग्रेड्स लें। क्योंकि आप ट्रस्ट करें, अभी तक मैं कहीं पर भी अप्लाई करूं, मैं भी लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करी थी कुछ टाइम पहले, उससे पहले जब वो बैन हो गए हैं न्यू रिक्रूटमेंट्स,
तो आप ट्रस्ट करें, अभी तक मेरी 9th और 10th की सर्टिफिकेट्स मांगी जा रही हैं। मींस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एकेडमिक्स। आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ का सोच तो रहे हैं, बट आप ये नहीं सोच रहे कि आपके ग्रेड्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्कॉलरशिप्स पे कहीं पर भी अप्लाई करने से पहले या किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में बात करने से पहले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू गेट गुड ग्रेड्स। वॉलंटियर वर्क किया करें, किसी भी टाइप की एक्टिविटीज हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एज एन एग्जाम्पल डॉक्टर तारिक इज करंटली सिटिंग हेयर एंड ही इज बीइंग अ होस्ट, और ये एक प्लेटफॉर्म है VDA विच इज अ कंट्री वाइड प्लेटफॉर्म, उसकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली विल गेट अ सर्टिफिकेट फॉर दैट। एंड ये फ्यूचर में डॉक्टर तारिक की CV में एडिशन हो रही है। तो आप वॉलंटियरिंग स्टार्ट करें, आप आउटरीच प्रोग्राम्स पे जाएं अपनी यूनिवर्सिटीज के साथ, आप लोगों को नहीं मिल रहे आप खुद अरेंज करें, आप पिंच इन करें मनी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप लोग ट्रिप्स पे जाते हैं ना खुशी खुशी और अपने मनी जो है वो पिंच इन करते हैं, इस तरह आप बहुत सारा मनी पिंच इन करें और आप लोग अपने टीचर्स को कहें सर आपसे माजरत है या आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक हमारे साथ आ जाए, हम इस इलाके में जाके फ्री में वैक्सीनेशन करना चाहते हैं या फ्री में डिवॉर्मिंग करना चाहते हैं या हम सैंपल कलेक्शन करना चाहते हैं, फीकल सैंपल कलेक्शन करें। यूनिवर्सिटी में आए, यूनिवर्सिटी की लैब्स हैं, गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया है, वहां पे बैठ के उन लैब्स में को यूज करें। वेट ना करें कि आपको प्लेट में सब कुछ मिलेगा। तो स्कॉलरशिप आपको तब मिलेगी जब आपका पीछे से रिकॉर्ड अच्छा होगा। आज तक मैंने कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जो बस एवं ही चला गया स्कॉलरशिप पे। आपको अपना रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। आई वॉज अ डिबेटर, मैं डिबेट्स करती थी, आई वॉज इन द स्टूडेंट सोसाइटी, आई वर्कड इन ऑन FM, नॉट लाइक फॉर अर्निंग, बट जब मेरे रीजन में टेररिज्म ज्यादा था और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए गए थे फॉर 1-1.5 साल के लिए, तो मैं रेडियो स्टेशन से वॉलंटरली जवान पाकिस्तान का प्रोग्राम करती थी, जहां पे हम मोटिवेट करते थे कि दिल छोटा मत करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया, वापस अल्लाह का करम है, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता जा रहा है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी CGPA बनाएं, नहीं बन रही तो ऐसा कोई प्लान करें, अपने टीचर्स के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें, उनके पास बैठें, उनको इज्जत दें। आप अपने टीचर्स के साथ ऐसा बिहेव करें जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि अगर तो आपको कहीं पे लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, तो किसी सीनियर के साथ जाकर डिस्कस करें और जरूर एक्शन लें। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक इट इज जो ये आप लोगों को मीम्स आती हैं कि जी आई वाज ये बिल गेट्स टाइप की, कि मैं मेरे पास ग्रेड्स अच्छे नहीं थे बट मैं आज आई एम ओनर ऑफ दिस कंपनी जहां पे सारे ऐसे काम कर रहे हैं, और फेसबुक टाइप की। तो आई थिंक ठीक है उनके पास CGPA नहीं थी बट दे हैड ब्रेन्स, दे हैड एन आइडिया फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। वो ग्रेड्स नहीं भी थे ना तो एटलीस्ट दे पास्ड इन गुड ग्रेड्स। तो ये है कि जरूरी नहीं है कि आपने टॉप करना है, बट फिर से यही बात मैं करूंगी कि स्कॉलरशिप से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी से देखें, उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अपने आप को फॉर्म करें, अपने आप को रेडी करें कि जैसे आप ग्रेजुएट हो, आपकी कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रेडी हो और आप अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह यू विल गेट योर स्कॉलरशिप। ओके, लेट्स गेट दैट। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद फतेहदीन कि हमें क्या टारगेट करना चाहिए फाइनल ईयर्स जो होते हैं डिग्री में, कि हम प्रोफेशनल लाइफ में जो है अच्छे रह सकें आगे। मैं इसको प्रोफेशनल लाइफ को एक्सक्यूज मी, इसको मैं डिवाइड करना चाहूंगी दो पार्ट्स में। एक तो होता है प्रोफेशनल लाइफ में टू गेट अ गुड जॉब जहां पे आपकी अर्निंग अच्छी हो, और दूसरा हम कह सकते हैं कि टू वर्क प्राइवेटली, जहां पे स्टार्ट में आपकी अर्निंग तो अच्छी नहीं है बट आप प्रोफेशनली स्ट्रांग हो रहे हैं और आपकी CV बन रही है, ताकि फ्यूचर में जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, आइदर वो गवर्नमेंट सेक्टर में है या कॉर्पोरेट सेक्टर में है या लोकल प्राइवेट सेक्टर में है, तो आप उसको कैसे कर सकते। तो इसको हम दो में ब्रेक करते हैं, और सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंटली एक्सपीरियंस बनाना। हम लोगों की बहुत एक आई थिंक ये रॉन्ग थॉट है। मैं तो नहीं कहती कि आपका एक्सपीरियंस तभी स्टार्ट होता है कि जब आप प्रोफेशनली एम्प्लॉयड होते हैं कहीं पे, नहीं, आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है।
आपने फॉर एग्जाम्पल एक आपके क्लिनिक्स हैं यूनिवर्सिटी के, वहां पर भी काम किया है, एक दिन भी काम किया है, उनको कहेंगे मुझे उस एक दिन का लेटर दें कि आई वर्कड हियर वॉलंटरली। क्लासेस की नहीं मैं बात कर रही कि जो आपकी नॉर्मल फाइनल ईयर की क्लासेस होती हैं या वहां पे आपकी रोटेशंस होती हैं, नॉट फॉर दैट। इससे क्या होता है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस जो है वो कलेक्ट होता जाता है। पहला काम तो आपने ये करना है। अब मैं जब टर्की में थी, then I worked there, so when I was coming back, so before I got my degree, I applied to the university and I got my work experience letter of 2.5 years from Turkey uh, as a professional who was working as a veterinary doctor and teaching the final year students in the research and practice hospital in Edges University. तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कल को मैं कहीं पर अप्लाई करूं किसी स्कॉलरशिप के लिए, पीएचडी पे, या फॉर एग्जांपल मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करूं, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं उस टाइम पीरियड में पढ़ नहीं रही थी सिर्फ। तो अगर आपके यूनिवर्सिटीज में हैं, और आई थिंक यूनिवर्सिटीज तो खुश होंगी आपको लेटर लिख के देने पे कि आप ने यहाँ पे काम किया, वॉलंटरीली काम करना शुरू करें। मोस्ट बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, तो आप अपने टाइम को नेटफ्लिक्स पे लगाने से बहुत बेहतर है कि आप इस टाइप की एक्टिविटीज करें या फिर एक्टिविटीज अरेंज करें। जैसे फॉर एग्जांपल वीडीए अरेंज कर रहे हैं, तो वीडीए की हर यूनिवर्सिटी में कैबिनेट है, आप अरेंज करें और वीडीए से सर्टिफिकेट्स लें, आप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स लें। प्रोफेशनल लाइफ में जाने से पहले अपने आप को इन चीजों पर के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रोसेस में आप सिर्फ ये नहीं सीखते कि आपने ऐसे वेटरनरी डॉक्टर कैसे बनना है, आप ये भी सीखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए आपके। आप ये भी सीखते हैं कि आप लोगों को आंसरेबल कैसे होना चाहिए चीजों के लिए, बोथ सोशली एंड प्रोफेशनली। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो प्रोफेशनली बहुत अच्छे थे फाइनल ईयर्स में, उनको सारी मेडिकेशंस आती थी, मुझे नहीं पता होता था क्या हो रहा है। जब फाइनल ईयर में मेडिसिन के एग्जाम आया और वहां पे एक डिजीज थी, इट वाज रिलेटेड टू हॉर्स, और उसका था कि इसकी पूरी ना डिजीज प्रोटोकॉल लिखे, इसकी ट्रीटमेंट की प्रोटोकॉल आरएक्स लाइक जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो लिखे। तो मैं तो सोच रही थी हो क्या गया मेरे साथ। तो वो जो जनरल, मैंने उसका आंसर इस तरह किया था कि जेटिपार भी उसको लगा दिया, मैंने उसको डेक्सा भी लगा दिया, सारे करके मैंने अपनी तरफ से एक ट्रीटमेंट बना दी, आंसर मेरा ओके हो गया, बट ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। लेकिन मुझे याद है जब हमने एग्जाम के बाद पूछा था तो मोर देन हाफ ऑफ माय क्लास न्यू द राइट आंसर। तो इसका मैं ये आपको कहना चाहूंगी कि आप जो है अपने आप को मेडिकेट, और वही स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट हैविंग राइट जॉब्स। तो आप लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, सोशली अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें, अपने स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करें। वेटनरी डॉक्टर ने सिर्फ काम नहीं करना, बोलना भी है क्लाइंट के साथ। आपको बोलना आना चाहिए, आपको बोलने पे सेटिस्फाई करना आना चाहिए। आधा काम तो आप वहीं कर देते हैं, आधी विनिंग तो आपकी वहीं हो जाती है। फिर बोलने के लिए आपको जरूरी है कि आप एकेडमिकली स्ट्रांग हो। कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन किया किसी क्लाइंट ने, आपको उसका आंसर नहीं आता, आप कहें नहीं जी ठीक है जी मैं इसको एंटीबायोटिक भी लगा देता हूँ, ये भी कर देती हूँ, वो भी कर देता हूँ। आप क्लाइंट को बताएं कि जी मैं क्यों ये स्पेसिफिक एंटीबायोटिक इस स्पेसिफिक केस में लगा रहा हूँ, घर जाके क्या क्या एडवर्स रिएक्शन आ सकते हैं, और अगर एडवर्स रिएक्शन आए तो ये ले, साथ में इंजेक्शन भर के आपको दे रहा हूँ, ये पिला देना। उससे क्या होगा, योर क्लाइंट और द फॉर्म ओनर और whatever प्रोफेशन इज दैट, उनको पता होगा दे कैन ट्रस्ट यू। सो ट्रस्ट डेवलपमेंट करने से पहले अपने आप को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करें, आपको आंसर आना चाहिए हर चीज का। अपने सीनियर्स के साथ बैठें जिनको आप अपने रोल मॉडल समझते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ प्रैक्टिकली टाइम स्पेंड करें, उनके साथ चाहे आप ऊनो ही खेल लें। ऊनो का पता होगा कार्ड गेम है, मैं खेलती होती थी अपने सीनियर्स के साथ, ऊनो ही खेल लें। एटलीस्ट ऊनो खेलते खेलते ही आप लोग बहुत चीजें सीख जाएंगे। और हमेशा अपने माइंड्स को ओपन रखें। अगर आपका जूनियर आपको कह रहा है ना कि जी मैंने ऐसा केस देखा था और उसकी ऐसे ट्रीटमेंट हुई थी, या मुझे पता है कि इस जगह पे अप्लाई करें स्कॉलरशिप के लिए तो ये होना चाहिए, तो एक्सेप्टेबिलिटी अपने अंदर लाएं। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई कहे कि जी आप जो है इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, तो मैं एक दफा जरूर पॉजिटिवली सोचूंगी कि शायद मैं रॉन्ग हूँ,
और मुझे एक जूनियर की बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। सो आपको एक्सेप्टेबिलिटी आनी चाहिए, आपको प्रोफेशनली स्ट्रांग होने के लिए अपने मेंटोर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको चाहिए कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स अपने इंप्रूव करें, वॉलंटियर वर्क्स करें, स्कॉलरशिप्स, क्या आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपने वॉलंटियर वर्किंग की, आपको जॉब मिल सकती है। मुझे भी जो जॉब मिली थी, फर्स्ट जॉब, मैंने अभी तक एक ही जॉब की है, कह सकते हैं प्रॉपर 2.5-3 साल बैरियर टाउन में, तो टर्की जाने से पहले, तो उसका बहुत बड़ा जो रोल था वो मेरे वॉलंटियर वर्क पे था, और लाहौर जू से जो मैंने इंटर्नशिप की थी उस पे था। तो अपने आप को अभी से एक फोकस दें, फाइनल ईयर में आपने किस तरफ काम करना है, आपको पता लग गया है अभी से आपने कहाँ काम करना है। आप डेयरी में जाना चाहते हैं, आप पोल्ट्री में जाना चाहते हैं, आप पेट्स में जाना चाहते हैं, पेट्स में भी किस तरफ जाना चाहते हैं, फोकस करें उस जगह पे। प्री इंटर्नशिप्स करें। लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान फॉर सम टाइम, मैं छुट्टियों पे आई हुई थी, तो मुझे कुछ गर्ल्स का पता लगा जो रावी कैंपस पत्तों की से डेली बेसिस पे लाहौर जाती थी अपने एक क्लिनिक पे वॉलंटरीली काम करने के लिए। वहां पे उनको पेमेंट नहीं मिल रही थी, वो पॉकेट मनी से जमा कर करके लोकल ट्रांसपोर्ट पे ट्रेवल करती थी, शाम को वापस हॉस्टल आती थी, क्योंकि टाइमिंग होते हैं हॉस्टल के, घंटा आने का घंटा जाने का भी अगर आप रख लें, तो वो क्लासेस के बाद जाते थे जस्ट अपना एक प्रॉपर फ्यूचर बिल्डिंग के लिए। माशाल्लाह टुडे दे आर सर्विंग एज वेटनरी डॉक्टर इन वेल रिनोन्ड वेटनरी क्लिनिक्स। तो आप लोगों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोग इंजॉय भी करें, स्पोर्ट्स खेलें, सब कुछ करें, बैठें इंजॉय करें, पर इंजॉय करने के लिए अपनी कंपेनियनशिप भी ऐसे लोगों के साथ रखें जो कैरियर ओरिएंटेड हो। सो आई होप फतेह I was helpful. Agar if you still want to break this question into something, you can ask me again कि अगर आपको किसी एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि okay, Etisham, I don't think that's a very direct question. I don't think, what does that question mean? Underdeveloped country like Pakistan, आप क्यों जाना चाहेंगे? अपने मुल्क में ही कर लें, पढ़ लें, मुल्क की HEC को फायदा दे दें। बाहर जरूर जाना है तो ये भी जरा सोचना चाहिए, बाहर जाएं तो ऐसी जगह पे तो जाएंगे कुछ लेके आए वापस अपने मुल्क के लिए, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जाएं। मैं तो कहती हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप ट्रेवल भी करें ना, तो आप बहुत कुछ सीख लेते हैं, चाहे कुछ प्रैक्टिकली ना भी सीखें तो आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप हो जाती है। धक्के जब पड़ते हैं ना इंसान को, तो इंसान बड़ा डेवलप होता है, ये एक फैक्ट है बहुत बड़ा। ओके, पेपर साइड फील्ड साइड, पेपर साइड फील्ड साइड मुझे नहीं समझ आई क्वेश्चन की, बट मेरे ख्याल में आप कहना चाह रहे हैं कि एकेडमिशियन होना चाहिए या फील्ड में जाना चाहिए। तो इट इज अगेन अप टू यू कि आप फाइनल ईयर में जब आएंगे तो आपको रिसर्च अच्छी लगती है, यानी मेरे ख्याल में एक ना जो हमारे पास हमारे कंट्री में कह सकते हैं या ओवरऑल वेटनरी फील्ड में एक जो आई थिंक एक इशू है, जो मुझे पर्सनली फील हुआ, जो मुझे एक प्रॉब्लम आई थी, वो है कि हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं करते। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से मेरा ये मतलब है कि हमें रिसर्च नहीं सिखाई जाती, जैसे आर्टिकल राइटिंग दूर की बात, आर्टिकल रीडिंग कैसे की जाती है, आर्टिकल रीड करके उसको साइट कैसे किया जाता है, वो सब कुछ हमें नहीं सिखाया जाता। तो अगर आप लोगों को वो चीज सिखाई नहीं जाएगी तो आप उसको कल को फ्यूचर प्लानिंग में रखेंगे कैसे कि आपने एकेडमिशियन बनना है, कल को आपने आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं या आपने लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करना है, और कल को आपकी प्रमोशन तब तक नहीं होगी जब तक आपके गुड आर्टिकल्स नहीं होंगे। यही है ना क्राइटेरिया HEC का। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा लूप है हमारे सिस्टम में। तो मैंने तो पर्सनली पेपर पब्लिशिंग, पेपर रीडिंग कब सीखा, जब मैं टर्की गई। वहां पे जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था कोर्स वर्क का, तो वहां पे एक कोर्स था, यहाँ पे जिस तरह बायो केमिस्ट्री का एक कोर्स होता है ना, बायोस्टैटिस्टिक्स का, वहां पे बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोकेमिस्ट्री कोर्स नहीं था। इट वाज नॉट इवन अ कॉन्सेप्ट कि वहां पे ये कोर्स हो। तो एक शौक था मेरे लिए कि ये भाई क्या होगा, कल को हमें बायोस्टैटिस्टिक्स पे काम करना पड़े तो क्या हम करेंगे। तो वो कहते हैं कि वो DVM में आप पढ़ आए हैं। वहां पे क्या कोर्स था, पब्लिकेशन एथिक्स का। वहां पे हमें पब्लिकेशन करने के लिए एथिक्स सिखाए गए उस पूरे सेमेस्टर में, और वो दोनों सेमेस्टर, जो फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स थे हमारे कोर्स पर के, उसमें वो कोर्स ऐड था कि एथिक्स क्या है, आपको पब्लिश करना चाहिए। तो वहां से मेरा फोकस ओपन हुआ कि आई कैन बी अ गुड रिसर्चर, आई कैन डू पब्लिकेशंस, आई कैन बिकम अ गुड वेटनरी प्रैक्टिशनर एज वेल एज
a person who records her cases and write about them and publish them in journals so that kal ko students can reach me out and they can see that. ये एक लूप है. तो आई थिंक इसके लिए आप अपने टीचर्स के साथ बैठें. जो आपने क्वेश्चन किया है, फील्ड साइड पे हम क्यों पाकिस्तानी प्रेफर करते हैं जाना, क्योंकि हम अर्न करते हैं फील्ड साइड से, और हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं. मोस्ट ऑफ जो बॉयज हैं या गर्ल्स भी आजकल, मैं तो कहती हूँ वही बात है कि इक्वली चल रहे कि आपने घर के लिए ब्रेड विन करनी है, आपने अर्न करना, इकोनॉमिकली सपोर्ट करना है, तो फील्ड में आना बहुत जरूरी है. फील्ड में साथ साथ भी आप पेपर वर्क कर सकते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए जमाल, यू हैव टू सिट विद दोज पीपल जिनको आप अडोर करते हैं. आप अपने मेंटोर्स आपको चाहिए. अडोर इन अ सेंस कि आप फ्री टाइम में एक गुड वे में, हम्बल वे में अपने टीचर्स को जिनको आप अडोर करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनको टेक्स्ट करें, उनको कहें कि सर क्या मैं आपके साथ 5 मिनट स्पेंड कर सकता हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है. वहां जाएं, उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें. हर इंस्टीट्यूट में ऐसे टीचर्स होते हैं, मेरे भी थे, एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट हिम एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर हिम. अल्लाह पाक उनको हमेशा हेल्प करे. ही रियली हेल्प मी अ लॉट. लाइक मेरा विजन ओपन करते थे वो हर दफा जब मैं उनके साथ बैठती थी, बात करती थी. हर जगह पे ऐसे इंसान मिलते हैं आपको. अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स के साथ बैठे तो गप्पे ना मारे, सिर्फ बातें करें. और इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर लैंग्वेजेस, तो आप सिंधी बोलना चाहते हैं, आप सराइकी बोलना चाहते हैं, आप पश्तो बोलना चाहते हैं, आप पंजाबी बोलना चाहते हैं, इंग्लिश, उर्दू, वट एवर, डज नॉट मैटर. अपने हर्डल्स अपने लिए खुद मत पैदा करें. कुछ लोग ना अपने ही सोच के गुलाम है. आप किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी कर सकते हैं. मैंने टर्किश लैंग्वेज सीखी 1 साल, और उसके बाद 2.5 साल मैंने टर्किश लैंग्वेज में प्रैक्टिस की है वेटनरी टीचिंग हॉस्पिटल में. क्योंकि जब एक क्लाइंट वहां पे आता है तो वो आपके साथ इंग्लिश नहीं बोल सकता, वो नॉर्मल टर्किश बोलता है. टर्किश लोग जो है उनकी इंग्लिश में बहुत लैग है. हमारी तरह उनकी एजुकेशन इंग्लिश में नहीं है, उनकी टर्किश में है. तो ये है कि उसको अगर मैं हर्डल बना लेती ना कि मैं नहीं बोल सकती, मैंने जिस तरीके की भी बोली है ना, मैंने अपना काम किया. तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इन चीजों पे थोड़ा तवज्जो दें. देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम फतेदीन, डज सर्टिफिकेट्स रियली मैटर इन प्रोफेशनल एज सोसाइटीज डोंट प्रोवाइड जनरल मेंबर्स. फतेदीन, आई थिंक रिसेंटली अभी यूग्रेड जब ओपन हुआ था तो मेरे एक बहुत करीबी हैं, उनके भाई ने अप्लाई किया. ही इज फ्रॉम पंजाब, और वो माशाल्लाह इस वक्त ही इज स्टडीइंग इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. वो जीकी में पढ़ रहे हैं. उनकी भी यही सेम इश्यूज थे कि सोसाइटीज जो है वो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड नहीं करती थी. तो आई टोल्ड हिम कि आप इस तरह करें, उनका लोगो लें, यूनिवर्सिटी का लोगो लें, एक सर्टिफिकेट डेवलप करें, अपने टीचर के पास जाएं, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स के पास, उनको रिक्वेस्ट करें कि सर प्लीज या तो एक लेटर पे मुझे लिख दें ये सब कुछ, या फिर मुझे आप ये सर्टिफिकेट जो है मैं ले आया हूं, इसी पे मुझे सिग्नेचर कर दें. तो उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट क्योंकि ऑफिशियल नहीं है और इस पे हम नंबर जो है वो नहीं दे सकते, जो एक सीरियल नंबर होता है यूनिवर्सिटी का, तो हम आपको लेटर टाइप करके दे देते हैं. तो उन्होंने उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया. इंशाल्लाह आई होप दे गेट द स्कॉलरशिप. तो आई थिंक आप लोग एटलीस्ट एक दफा रीच आउट जरूर करें डीएसए को, और इस चीज को इनिशिएटिव बनाएं. क्लास में माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप सब अप्लाई करना शुरू कर दें तो आई थिंक यू विल गेट इट. ये आपका राइट है, जरूर करें. मुझे याद है जब मैं यूग्रेड पे गई थी और मेरा फर्स्ट डे था यूनिवर्सिटी में, मरे स्टेट यूनिवर्सिटी केंटकी में, यूएसए में. तो वहां पे हमारी एक एडवाइजर होते हैं, जनरल एडवाइजर. तो उनकी जब मैं रूम में गई तो मेरी फाइल आगे पड़ी, तो मेरी फाइल इतनी मोटी थी. तो मैं खुद सोच रही थी कि इतना बड़ा फॉर्म तो नहीं था, क्या है मतलब. उसके बाद मुझे पता लगा क्योंकि उधर पेपर, जो A4 पेपर की क्वालिटी जरा ज्यादा अच्छी होती है हमारे A4 पेपर से, तो मेरी सर्टिफिकेट्स थी जिनका, जो मैंने अप्लाई जब किया था तो उन्होंने ओवरऑल मेरी सारी फॉर्म का जब प्रिंट निकाला तो इतनी मोटी हो गई. तो आई हैव अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स. आई रियली 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 प्रेफर कि आपके पास सर्टिफिकेट्स हो. जो मेरी कुछ ऐसे विनिंग्स हैं, कुछ रीजनल, कुछ नेशनल डिबेट्स के कॉम्पिटिशन्स और ये वो, जिनमें शील्ड दी गई थी, सर्टिफिकेट्स नहीं दी गई थी या अवार्ड दिया गया था. मैनी पीपल विल लाफ, बट यू नो व्हाट, बिफोर अप्लाइंग फॉर टर्किश स्कॉलरशिप मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि मुझे उनकी फोटोग्राफ्स भेजें. शी पुट देम ऑन अ टेबल, और बैकग्राउंड व्हाइट था हमारी वॉल का, तो उसने उनकी फोटोज ली. फिर मैंने उनको एडिटर में व्हाइट बैकग्राउंड करके उनको भी अपलोड किया इन द पीडीएफ, बिकॉज दीज आर माय विनिंग्स. मेरी मेहनत है भाई.
तो दैट वाज काउंटेड एज वन, और लाइक उन्होंने एक नंबर प्लस किया मेरे टोटल विनिंग्स में या मेरी टोटल एक्सपोजर में। तो अपने किसी भी काम को कम मत समझें, जहां भी काम करें उनसे रिटर्न लें। आई वॉज टेलिंग डॉक्टर इमरान कि डॉक्टर इमरान, ओके आई एम द ओनर ऑफ दिस हॉस्पिटल एंड आई एम गिविंग सैलरीज टू पीपल, बट वन डे व्हेन आई विल नीड दिस, तो आपको मुझे वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नेचुरली इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो एंड फतेहदीन, I am available if you need help in making the certificates, or if you need help in writing the letters, I am here, I will write for you. So आप मुझे text करें, you have my number and you have my Instagram, तो I will help you. और भी कोई सोसाइटीज में मेंबर्स हैं जो करना चाहते हैं तो वीडियो के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, I will help them. तो मैं आपको आइडियाज भी भेज सकती हूँ, बिकॉज आई हैव माई सर्टिफिकेट्स, आई हैव माई लेटर्स, तो जरूर आप इस चीज पे तवज्जो दें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक प्रूफ है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चंस हैं? इफ समबडी हैज, मैं एक दफा ऊपर भी देख लेती हूँ इफ आई मिस्ड एनी क्वेश्चन। हम फिर स्कॉलरशिप्स के काफी क्वेश्चन आ रही है, एक दिन एक सेशन कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ टाइम में स्कॉलरशिप्स ओपन होंगी, यूग्रेड जो है वो तो क्लोज हो गई है, टर्किश स्कॉलरशिप पे कर लेंगे। चलें, उस पे ये होता है कि वहां पे आप पोर्टल बना सकते हैं, तो जब भी जो स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती है वो पूरे ईयर में स्कॉलरशिप्स देते रहते हैं। तो जैसे स्कॉलरशिप ओपन होगी तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो वो आप कर सकते हैं अप्लाई। मैं आपको किसी दिन वीडीए, इफ वीडीए थिंक्स दिस इज राइट, तो हम किसी दिन स्कॉलरशिप्स पे भी सेशन कर लेंगे। बट एक्चुअली ये सेशन मैं बहुत कर चुकी हूँ, 2019 में भी किया है, 20 में, 21 में भी, उससे पहले भी मैंने 16 में भी किया है, 17 में भी किया है, 18 में नहीं कर सकी। तो वो सब ऑनलाइन हैं अवेलेबल। वहां पे एक स्कॉलरशिप्स कॉर्नर के नेम से एक ग्रुप है फेसबुक पे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके जो फवाद आफरीदी हैं उसके एडमिन, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे नेम के पेजेस हैं और ग्रुप्स हैं, उधर अवेलेबल हैं, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। फिर भी अगर आपको चाहिए, क्योंकि मैं फोकस करना चाह रही थी वेटनरी प्रैक्टिसेस पे, स्कॉलरशिप इज अनदर थिंग। अभी हमने अपनी कौम को देने का टाइम है, बहुत ले लिया है इधर उधर से, हमने बहुत फायदा ले लिया, बहुत कुछ। अब हमारा इस वक्त नीड है हमारे मुल्क को, हमारी प्रैक्टिशनर्स की नीड है, टीचर्स की नीड है, स्टूडेंट की नीड है, तो हमें अब देने का टाइम है। लेट्स गिव बैक टू द नेशन। तो आई वांट कि अगर मेरे सिर्फ बोलने से किसी की कोई काउंसलिंग हो सकती है तो मैं वो जरूर करूं घर में बैठ के ही। तो दिस इज व्हाट इट इज। अब अगर हम इट्स बिन एन आवर, सिर्फ हमारे पास 3 मिनट्स रह गए हैं, तो आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक वी शुड बी गिविंग the final remarks. So thank you so much. और next week inshallah stay tuned. The first one I am going to think about एक टॉपिक है, although मैं आपके कमेंट्स लूंगी about that कि क्या होना चाहिए नेक्स्ट वीक का टॉपिक, बट हमने जो डिसाइड किया है VTA ने हमारे लिए, और मैंने डिसाइड किया, वो ये है कि हम लोगों को स्कोप ऑफ पेट प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान पे बात करनी चाहिए, जिस पे मैं एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करूंगी रीजन वाइज, कि मेरे पास जो केसेस हैं या कोई एग्जांपल्स हैं डॉक्टर्स की, वो कहाँ पे काम करें, कितना काम करें, उनसे मैं जरूर सर्वे लूंगी इस वीक में। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे को 9 PM, और मैं उस सारे सर्वे के साथ आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह, एंड आई विल टॉक अबाउट के पेट प्रैक्टिसेस का क्या स्कोप है पूरे कंट्री में और हम क्या दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप आई वाज हेल्पफुल इन दिस इंट्रोडक्टरी सेशन, और इट वाज जस्ट अ डिस्कशन इनफॉर्मल, सो आई होप इट वॉज फ्रूटफुल और आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और ओवर टू यू मिस्टर तारिक, अब आप कर सकते हैं प्लीज क्लोजिंग रिमार्क्स। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। यस मैम, नेटवर्क I think there is some technical glitch with the network. जी मैम, मेरे पास थोड़ा नेटवर्क का इशू था, तो मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था कभी कभी। I will do it. So thank you so much everybody for joining. इसानुल्लाह का एक लास्ट क्वेश्चन है,
Isanullah, we will be talking about these questions in future inshallah. और आप इस तरह कीजिएगा कि नेक्स्ट वीक से, क्योंकि एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगी, आप लिंक अपने क्लास फेलोज के साथ एज अ सदका जारिया जरूर शेयर करें. इससे मुझे प्रोफेशनली तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी, बट आई थिंक कि इट इज माय ड्यूटी कि मैं आप लोगों को हेल्प करूं. तो आप अपने क्लास फेलोज की हेल्प करें, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें, आप अपने जानने वालों को शेयर करें. इवन आप लोगों के फैमिली मेंबर्स हैं जो पेट लवर्स हैं या एनिमल लवर्स हैं, उनके साथ शेयर करें. आज भी कुछ मेरे क्लाइंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है. सो आई होप के इट वाज अ गुड सेशन. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक, और स्टे ट्यून्ड. और जरूर लिंक्स को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे. अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड